multiple threats. We came out here to march. We're here for Azadi. What does Azadi mean? Freedom. Freedom to mobilize, freedom of speech, freedom to protest, and more importantly, freedom to education, the right to work, the right to live free from discrimination, and the right to live free from torture. We march here today because when a woman in Pakistan gets raped, she shouldn't be asked how much petrol was in your tank. She should be sympathized with. She should be told that we're here for her. We are done with victim blaming. We are done with having our voice put into the ground, and that is why we march here today. For Kandil, for Zainab, for ourselves, and for all those women who couldn't come here today. I think this is a very symbolic protest. It's a feminist celebration of how far we've come. But obviously, like, our battle doesn't end here. I think it's really, really important that the state and I would also say like institutions realize that there are a lot of structural inequalities that need to be dismantled. And we're going to do this every year. We're not coming here as NGO workers or people who represent the government or people who represent political parties. We're coming here as feminists, as individuals who are basically here in a collective formation to not only talk about our right to battle injustices, but also our right to celebrate how far we've come. And I don't think there should be any problem in that. There are laws which are discriminatory. There's institutional patriarchy in this world, in Pakistan, and most importantly, every culture, every norm, everything that is here. They see feminist women as witches. They see us like somebody who does not deserve any respect. We have been facing multiple threats, like past entire year, because Islamabad Aurat Azadi March was under attack last year, and this year we were given open threats. It's still the state denied to provide us NOC. That means that they do not want to protect us officially. They denied the protection, which is our democratic right. It is our democratic right to assemble. It is our democratic right to protest. Pakistani women are determined to free themselves of male dominance and patriarchy. They're asking for a culture that respects women and treats them equally and allows them the space to flourish and have opportunities that men in Pakistan enjoy. डर दे वरके पाड़ के सुट दी जा समझण ना बराबर जो लताड़ के सुट दी जा दिल अपने चों डर दे वरके पाड़ के सुट दी जा समझण ना बराबर जो लताड़ के सुट दी जा शीशे जे खुद नू पत्थर जइए बना ले तू शीशे वर्दी खुद नू पत्थर चाहिए बना ले तू तेरे ते कोई जुल्म करे तलवार उठा ले तू मैं जीपा दी झालराला फ्रॉक पाइके कंध टप्पी बोलना मैनू फिर ना आया बाबा वे धरती दी धौन ते सब चढ़िया दिया धोना ते सब चढ़िया असी अदियां पलियां हसी पौनियां चंगिया साडी हेरी ते तीनू पकियां आप औरत मार्च में आज शरीक हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए आपके लिए यहाँ पे शिरकत करना क्यों अहमियत रखता है? अच्छा, मैं सिर्फ ਇਹ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।
अच्छा मेरे ख्याल ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਢਾਂਪ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਢਾਂਪ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ औरत च ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫिर औरत च फर्क होना चाहिए। ये मुझे बताइए, ये इसका फैसला क्या खवातीन को करने का हक नहीं कि वो क्या पहनना चाहती हैं, किस तरह आना चाहती हैं, वो क्या पैगाम देना चाहती हैं? इसका फैसला करने का हक किसको है? अच्छा क्यों खवातीन ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਚੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਖਵਾਤੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अगर ਤੁਸੀਂ मुसलमान हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ करना पड़ना है अमल। बहुत शुक्रिया। आप फोर्स ना करें। आपको नहीं लगता किसी भी बात को जवाब देने के लिए जिस्म का इस्तेमाल करना दुरुस्त है? देखिए इसलिए जरूरी है क्योंकि एक औरत का जिस्म ही टारगेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टारगेट हो रहा है। अच्छा एसिड किसके ऊपर फेंका जाता है? इनकार किया, एसिड फेंक दिया, ठीक है। शादी से इनकार किया, कत्ल कर दिया, ऑनर किलिंग होगी। वो जिस्म का हिस्सा नहीं है। ऑनर किलिंग क्या है? वो जिस्म का हिस्सा है ना। सो अगर आप जिस्म के हिस्से को ऑनर किलिंग के कॉन्टेक्स्ट में ले रही हैं, एक इंसान का जिस्म वो जिस्म का हिस्सा नहीं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी कि मैंने इनकार कर दिया तुम्हें, मुझे कत्ल ना करो। मेरा बाप ने बेटी का कत्ल कर दिया, भाई ने बहन का कत्ल कर दिया, वो क्या है? आप मुझे ये बताएं, जरा बैक पे देखिएगा, बैक पे देखिएगा। इस तरह से नारेबाजी करना दुरुस्त है? क्या गलत है इसमें? आपको पता है जब आप हिस्ट्री में जाएंगी ना, सफ्रेजेट्स की एक मूवमेंट थी जिसको आप बाहर का एजेंडा कह ले। सफ्रेजेट्स की एक मूवमेंट थी। उस टाइम पे औरत को वोट करने का हक नहीं था। आपको लगता है औरत को वोट करने का हक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उस टाइम पे औरत को वोट करने का हक नहीं था। इसी तरह ही औरतें अपने घरों से निकली थी और उन्होंने यही डिमांड किया था कि बीइंग एन इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी डिजर्व द राइट टू वोट। एज सिंपल एज दैट। ख्वाजा सरा के साथ क्या होता है आपके यहाँ? यहाँ पर आए हैं वो रक्स करेंगे। इस महफिल में देखोगे तो रक्स का जो ऐलान किया गया था उसके बाद जो है वो यहाँ पर लड़कियाँ जो है वो रक्स कर रही हैं। ख्वाजा चिराग के दौर में शामिल है। जो आप देख सकते हैं इसमें वो ख्वाजा चिराग हैं और आहिस्ता आहिस्ता लड़कियाँ जो है वो इसमें शामिल हो रही हैं, रक्स कर रही हैं। ग्रीन चौक के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने ये मनाज़िर हैं। अपनी तरफ से तो ये हीरो ही था। ये बच्चे वाली
मेरा पर्पस यहाँ आने का ये है कि औरतों को हर वो सारे हकूक़ मिलें जो वो डिज़र्व करती हैं। उसके अलावा मैं उन सब औरतों के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करके आई हूँ जो यहाँ पे खुद नहीं आ सकती, जिनकी फैमिलीज़ कंजर्वेटिव हैं। मैं इसलिए उन सब औरतों के लिए यहाँ पर आई हूँ, उनको रिप्रेजेंट करने, ताकि हम कम्युनिटी में चेंज ला सकें, हमारी कम्युनिटी में इक्वालिटी बढ़े और जस्टिस मिले औरतों को, एंड ऑल देयर अनहर्ड स्टोरीज़ यहाँ पे आके मतलब हमें जस्टिस मिले। आज जमा होने का ये वजूहत ये हैं कि औरतों के साथ और ख्वाजा सिरा और नॉन बाइनरी लोगों के साथ जो ऑपरेशन होता है उसके लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि हम कोई स्टेप लें। इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया है कि भाई यहाँ आप क्यों आ रहे हैं, ये फजूल चीज़ है, यूर अटेंशन सीकिंग, बट आई कम्प्लीटली डिसएग्री। मैं एक औरत हूँ। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। सिंधी भी बोलो, सिंधी भी बोलो, बलोच भी बोलो। रेप करना, ये रेप करना, ये जिनसी ज़्यादती, हरासा करना, ये जिनसी ज़्यादती, ये जिनसी ज़्यादती, ये रेप करना, ये रेप करना, ये रेप करना, ये फोर्स कन्वर्जन। पंजाबी बोलो, पंजाबी बोलो। फीसद आबादी का हिस्सा है, उनकी नस्ल कशी की जाए,
उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए कि वो यहाँ पर अपने मुल्क में ही रह ही ना सके, वो मजबूर हो जाए अपने खानदान वालों को छोड़कर रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगियां जो है यहाँ पर महफूज नहीं है। हमने ये देखा कि हुकूमत ने पिछले साल कोरोना वायरस पे तो बहुत काम किया, इसलिए हम देख रहे हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन शिया नस्ल कसी पे काम नहीं हुआ। हमने देखा कि हजारा कम्युनिटी उसी तरीके से अपने जनाजे उठाती रही, उन्होंने कोई रिटेलिएट नहीं करा, उन्होंने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई इस तरह से नहीं करी कि वो कहेंगे जी हमें मारो तो हम भी तुम्हें दौड़ लगाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम कानूनी हिसाब से चलेंगे, ये जो रियासत है ये अपना कानून इम्प्लीमेंट करे। उन्होंने रियासत से बात कही, लेकिन आज तक उनका कोई भी मारने वाला नहीं पकड़ा गया है। ये सवाल है रियासत से कि ये क्या वजह है कि शिया नस्ल कशी की जा रही है, शिया नौजवानों को उठाया जा रहा है, जो लोग ज़ियारत पर जाते हैं उनको वापसी में आकर उठाया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये तहरीक इंसाफ कहाँ का इंसाफ कर रही है? ये रियासत कहाँ का इंसाफ कर रही है? क्या आपको नहीं पता कि ऐसी फैमिलीज की माओ बहनों बेटियों के साथ किस कदर मुश्किल होती है कि कोई आपको यही नहीं पता होता कि आपका जो फादर को या आपके बेटे को या भाई को जो अगवा किया गया है वो जिंदा भी है कि नहीं। किसी ने उनसे पूछा कि आप किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? ये सारे इश्यूज हम औरतों को सहने पड़ते हैं क्योंकि हम खुद असरअंदाज होते हैं, हमें इसका सबसे ज्यादा असर होता है इस चीज का। तो क्या हमारा सवाल है रियासत से कि ये क्यों नहीं होता है? हमारा ये डिमांड है हमारी कि रियासत मेक श्योर करे कि वो जो सारे इन कानून तोड़कर आ गए थे यहाँ पे सड़कों पे पिछले साल भी, और हमारी मस्जिदों पर इमाम बारगाहों पे पथराव कर रहे थे, इन सबको पकड़े, इन सबका एहतसाब करें, इन सबको आप जेल में डालिए। आपका काम है हर शख्स की हिफाजत करना, हर शख्स के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि जो मेजॉरिटी होती है सिर्फ उसको देखना, आपका काम ये है कि हर किस्म की माइनॉरिटी की आप ख्याल रखिए। तो रियासत अपना अमल दरामद करे।
ना मेरी गल विच। कोई कहंदा भैणे मेरीए मिठी सोहनी जान तू प्यारीए, जान तेरे तू वारी कर सकना वा, पर जे मोड़िया आखा मेरा जान तेरी मैं ले सकना वा। कोई कहंदा ये मेरीए इज्जत मेरी हथ विच तेरे, सांभ के रखी डुल ना जावे, विच बाजारे डुल ना जावे। कुछ ना पुछी कुछ ना बोली, चुप करके बस अथरू रो लई। कोई कहंदा बीवी है तू, होर की चाहिदा तेनू, रोटी टुक्कर कपड़ा लत्ता सब कुछ ते मैं तेनू दिता। बहुती बक बक न कर, बीवी है तू बीवी बन। कोई कहंदा आई लव यू डार्लिंग, आजा प्यार दियां दो गल्लां करिए। ना देण दा वादा नहीं करदा, नाल रहण दा इरादा नहीं रखदा। हाँ रात दा मुल मैं दे देवांगा, आजा इधर कमरे अंदर। दस वे मेरे सोहणिया रब्बा आखिर मैं है कौन? ते फिर मेरे अंदरों एक आवाज आंदी है, ना मैं बीवी महबूबा माशूका, ना मैं धी भैन ते मां, मैं ते बस एक औरत हाँ। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो 10 आदमी मुझे देखते हैं और मुझ पर आवाज़ कसते हैं। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि मैं जब मोटरवे पर सफ़र करती हूँ तो मुझे मेरे बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि मैं जब कोई टैक्सी या करीम उबर सर्विस यूज़ करती हूँ तो मुझे हर वक्त हरासमेंट का डर रहता है। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि मैं जब मर्दों से भरे दफ्तर में जाती हूँ तो हर आदमी मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है जैसे मैं कोई खलाई मखलूक हूँ। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि मुझे मेरे घर में और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर आदमी से ख़तरा महसूस होता है। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि अगर मैं तालीम में अव्वल भी आ जाऊँ तब भी मेरी डिग्रीज अलमारी में पड़ी रहेंगी। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे घर वाले और मेरा मुआशरा मुझे नौकरी करने की इजाज़त नहीं देगा। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि जब से मैं पैदा होती हूँ मेरी माँ मेरा जहेज़ जोड़ना शुरू कर देती है। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि अगर मैं जहेज़ ना लेकर जाऊँ तो मेरी सास मुझे सारी ज़िंदगी ताने देगी, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले मुझे ज़िंदा जला देंगे। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि जब मेरे लिए किसी बड़ी उम्र के आदमी का रिश्ता आता है तो मेरी रज़ा सिर्फ रस्मन पूछी जाती है। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि जब मेरा निकाह होता है तो मुझे निकाह नामा दिखाया भी नहीं जाता, यहाँ तक कि औरतों को दिए गए तमाम हकूक़ निकाह नामे से काट दिए जाते हैं। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि मैं अगर अपनी पसंद से शादी करना चाहूँ तो मुझे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि शादी के बाद जब मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है, मुझ पर हाथ उठाता है, तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरी माँ ने रुखसती के वक्त मुझे कहा था कि अब अपने शौहर के घर से मरकर ही निकलना। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि शादी के बाद मुझ पर बेटा पैदा करने का दबाव डाला जाता है। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि अगर मेरी बेटी पैदा हो जाए तो उसे कोई अपनाने को तैयार नहीं होता कि बेटियां तो बोझ होती हैं। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि मेरे अंदर इतनी वक़्त हो या ना हो, बेटी की खातिर मुझे बार बार बच्चा पैदा करने पर मजबूर किया जाता है, चाहे इस सिलसिले में मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि अगर मैं हिम्मत करके तलाक ले भी लूँ तो मुआशरा हर कदम पर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करता है। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि मुझे औरत होने की वजह से जुल्म, ज़्यादती और तफरीक का निशाना बनाया जाता है। मुझे मेरी तालीम, मेरा काम, मेरी ज़िंदगी और मेरा जिस्म किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला लेने की खुद मुख्तारी हासिल नहीं है। हमें औरत मार्च इसलिए चाहिए कि हमें इन तमाम नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है।
अपनी ताकत है, हम बहने अपनी ताकत है, हम बहने अपनी ताकत है, हम बहने। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। इतनी कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि इन सड़कों पे नंगा नाच होगा। इतनी कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि कोई भी फाहिशा उठ के आके बोले कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जिसका जिस्म उसकी मर्जी, जिसका जिस्म उसकी मर्जी। ये अल्लाह ने हमें दिया और ये उसकी मर्जी है। इसमें एक सेकंड इसे पकड़ के साइड पे करो। इससे ज्यादा ना मारो, इससे ज्यादा ना मारो। अच्छा, दूसरी बात, पापा जी फरमा देते हैं गंदियों को चंगे बच्चे बस आ जाओ, उससे कुछ ना करो, आ जाओ, वापस आ जाओ। और यार ये बच्चे मम्मी डैडी की बस आ जाओ। इसे एक बर्गर खिलाओ और बेच दो। और इंसान का जिस्म है, ये अल्लाह की मर्जी है। ख्वाजा सराय चूड़ी बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है। उसने कहा मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी होती तो मैं मर्द पैदा हो जाता, मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी होती तो मैं औरत पैदा हो जाती। इस पे अल्लाह की मर्जी। हमने उन गंदी औरतों को नहीं रोका, हम लोगों ने, हम सुपर सिंगर मौजूद हैं, नहीं लिया, हम खामोश रहे। अब जब उनकी नाजायज औलाद आके खराब करने लगी है तो अब आपकी जिम्मेदारियों से अरेस्ट करें। देखिए आपने फेस क्यों छुपाई? I really wish you could bring your liberation march. जिंदाबाद
जो मेरे साथी हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करूंगी और खराज तहसीन पेश करूंगी क्लेरा ज़िटकिन को कि इनकी वजह से आज हम इंटरनेशनल वर्किंग वुमेंस डे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा मैं माइक हैंड ओवर करूंगी समी दीन मोहम्मद को। मेरा ख्याल से ये पूरा जो दिन है ये समी को डेडिकेट होना चाहिए, हसीबा को डेडिकेट होना चाहिए और वो तमाम बलोच फीमेल्स को डेडिकेट होना चाहिए जिनकी बचपन से लेके उनकी जवानी प्रेस क्लब रोडों पे और एहतजाजों में गुजर चुकी है। तो समी दीन मोहम्मद जो अपनी बात और अपने सफरिंग और जो उन्होंने फेस किया है वो आप सबके सामने रखे। समी दीन मोहम्मद।